Good morning, children. Now, welcome back again in our YouTube videos. I am 100% sure that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay, now, children, let's start our session. Okay, now, if you all remembered that the last video yesterday, which you all have seen, in that video we have discussed about the effects of the cyclone. Okay, that how much the cyclonic storm will put its impact on the earth and nearby the seashore areas. Okay, so yesterday we have discussed the two important points, that what type of danger and what type of dangerous situations will be created nearby the sea or nearby the ocean. This was the first number topic. Okay, and the second one, what will be the dangerous situation on the land. Okay, it means overall yesterday we have discussed about the dangerous situations and the conditions nearby the seashore and on the land. Okay, that we had already discussed. Now it is one thing very obvious to everyone, that whenever the cyclones will come, or if once it had already been came on the earth. Okay, मतलब एक बार अगर साइक्लोन आ चुका है बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी अलर्टनेस के, देन फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल बी अलर्ट. नेक्स्ट टाइम के लिए हम और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे कि हम अपना और अपने फैमिली की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम स्टेप्स ले पाएँ. ठीक है, so whenever this situation will be created, then ultimately we are getting a message for the next one कि if the same conditions will be repeated in the future again, then what we should do. So in this sequence today we are going to study that what the safety measures during a cyclones, that whenever the cyclone will come, what safety measures should we take, or we should be alert before it's coming. Just assume that it will come, and what precautions we should do. These things today we are going to discuss. Now let's have a see here. All of you children, please be alert. Okay, now see here, cyclones can be tracked and a warning can be given well before it came close to land. Now this is the very relief point. Okay, कि साइक्लोन्स आने से पहले साइक्लोन्स को आप ट्रैक कर सकते हो और हम अलर्ट जारी कर सकते हैं बिफोर इट केम. आप लोगों ने देखा होगा अभी लास्ट ईयर 2019 में और अभी इस साल 2020 में भी, जब कोरोना के केसेस काफ़ी कम थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे उस समय, मतलब भारत में अभी वो धीरे धीरे फैल रहा था. ओके, उस टाइम पर एक तूफ़ान आया था भारत में. ओके, जिसका अलर्टनेस हमें पहले से ही मिल गया था. हमारे देश के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से हमें अलर्ट कर दिया था कि एक तूफ़ान आने वाला है जिसका विंड की स्पीड इतनी होगी और वो जिन स्टेट्स को इम्पैक्ट करेगा, ऑल द स्टेट्स दोज हु विल गेट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म, दीज आर द नेम ऑफ द स्टेट हैज़ बीन गिवन. ओके, so by this ultimately the government was alert and all the security measures had already been taken before it touched the land of India. Okay, so this is the very relief point of view. This is the very good point that we can say that we are getting the alert, we are getting the warning about the cyclones before it came on the land or nearby the country. Okay बच्चों, and this is possible just only because of the satellites, that they are having a view everywhere on the earth. Okay, so ultimately we are getting the warning. Now here are the few safety measures that you should take if a storm warning has been issued in your area. मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आने की वार्निंग हमने आपके एरियाज़ में दे दिया है, या फिर आपके स्टेट में या फिर आपकी कंट्री में हमने दे दिया है. देन व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स वी शुड टेक, व्हाट सेफ्टी मेजर्स वी शुड टेक, सो दैट वी कैन मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ डेथ, वी कैन मिनिमाइज द लॉस ऑफ द लाइफ्स एंड द प्रॉपर्टी, और वी कैन इंक्रीज द सर्वाइवल चांसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ओके, बिफोर द स्टॉर्म you can prepare yourself in the following manner. Now what precautions we should take, all of you please see here. First number,
listen to the news on TV or radio. Listen to the news on the TV or radio about where and when the storm is likely to make landfall and what category it is. मतलब आपको लगातार टीवीज़ को ऑब्जर्व करना है और आपको ये देखते रहना है कि जो स्टॉर्म आने वाला है वो अभी कहाँ पहुँचा है, वो कितने दिनों में आपके एरियाज़ को टच करेगा या फिर आपकी कंट्री को टच करेगा, और टच करने के बाद उसकी कैटेगरी क्या होगी। ओके, मतलब अभी तो वो स्टॉर्म काफ़ी दूर है तो उसकी कैटेगरी क्या है। टच करने के बाद आप एज्यूम करोगे कि उसकी कैटेगरी क्या है, या फिर जब वो आपकी कंट्री को टच करेगा उस समय भी आपके टीवी के न्यूज़ चैनल्स पर आपको अलर्ट किया जाएगा कि इसकी कैटेगरी 1 है या फिर 2 है या 3 है या 4 है या फिर 5 है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्टिवनेस हम एज्यूम कर सकते हैं। वी कैन एज्यूम दैट हाउ मच डिस्ट्रक्शन विल बी डन व्हेन दिस साइक्लोनिक स्टॉर्म विल टच। ओके, you may also receive instructions on whether you should stay indoor or evacuate. Now, as per the situations and conditions, because these are not the new one, for our country they may be new, but several times we have seen that these types of cyclonic storms had already came in different parts of the world. Okay, then what actually the government is doing? Government is taking a response from the countries in which already the destruction had been done by this cyclonic storms. So we are getting the learning from these countries that what steps they had already taken and how much destruction the cyclonic storm have done. Means even though the steps has been taken to stay themselves safe, to keep the property safe, to minimize the number of loss of the humans on the earth, okay, in the country, तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कितने नंबर ऑफ पीपल्स की वहाँ पर डेथ हुई है और कितने लोग इससे इफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, उस बेसिस पर गवर्नमेंट आपको अलर्ट करती है कि आपको अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाना है या फिर आपको अपने घर के अंदर रहना है। देखो बच्चों, किसी भी तरह की नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, ओके, किसी भी देश में, तो वहाँ पर आपदा जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह का प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक के टाइम प्रिकॉशंस अलग होते हैं, लाइटनिंग के टाइम प्रिकॉशंस अलग होते हैं। ओके, क्योंकि लाइटनिंग बाहर होती है, अर्थक्वेक हमारे अर्थ के अंदर होता है, तो अर्थक्वेक के टाइम पर हम अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं बिकॉज आउटसाइड वी आर सेफ। ओके, लाइटनिंग के टाइम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हम सेफ रहेंगे। तो अलग अलग नेचुरल क्लाइमेटीज़ और अलग अलग प्रॉब्लम्स में जो प्रिकॉशंस आप लेते हो वो प्रिकॉशंस भी डिफरेंट होंगे। ओके, तो दैट वाज ओनली दे आर सेइंग द गवर्नमेंट विल टेल यू कि यू मे ऑल्सो रिसीव इंस्ट्रक्शंस ऑन वेदर यू शुड स्टे इंडोर और इवैक्यूएट। न्यूज़ अपडेट्स अबाउट द स्टॉर्म may also be sent over the internet। इंटरनेट का भी हम पूरा यूज़ करते हैं क्योंकि आजकल पूरा का पूरा वर्ल्ड व्हाट्सएप और फेसबुक पर है, ठीक है ना, पूरा मोबाइल हर जगह पे है, सबके पास अपना अपना इंटरनेट कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो लोगों के बीच की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसी कनेक्टिविटी का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट एक जगह से अगर ये अलर्ट इशू होता है तो पूरे वर्ल्ड में पहुँचने में 1 से 2 मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड में सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इसका हेल्प लेती है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कि व्हाट प्रिकॉशंस अल्टीमेटली द पीपल्स ऑफ देयर कंट्री हैव टू टेक इन ऑर्डर टू सिक्योर देमसेल्फ एंड देयर लाइव्स, मीन्स देयर फैमिली मेम्बर्स। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट वन। नाउ सी सेकेंड नंबर, in the case of storm is imminent। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि इन केस स्टॉर्म इज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है नियर बाय। स्टॉर्म अगर आपके आसपास है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज ने आपको अलर्ट नहीं किया,
या गवर्नमेंट को बाद में मालूम चला, जब स्टॉर्म हमारे देश के बहुत ज़्यादा नियर बाय में आ गया, इमिनेंट हो गया, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया, तब मालूम चला हमें, देन अल्टीमेटली यू विल गेट लेस टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, तो नाउ सी इन दैट सिचुएशंस व्हाट अल्टीमेटली वी हैव टू डू। तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? देखो, स्टॉक अप इनफ फूड एंड वाटर टू लास्ट अ फ्यू वीक्स, मतलब कम से कम पिछले कुछ हफ्तों के लिए, अगले कुछ हफ्तों के लिए आपको अपना फूड स्टफ करके रखना है। स्टॉक अप इनफ फूड एंड वाटर टू लास्ट फ्यू वीक्स, स्टोर इनफ बैटरीज, इनफ बैटरीज को आपको स्टोर करना है, क्योंकि देखो बच्चों, फूड एंड वाटर के बिना तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे कहीं भी, चाहे आप घर के अंदर रहो या घर के बाहर रहो, ठीक है। तो अल्टीमेटली में फूड और वाटर को आप अपने आसपास अगर रखोगे तो सब कुछ अगर चला जाए, इवन इन दैट कंडीशन ऑल्सो यू कैन सर्वाइव, बिकॉज यू आर हैविंग द टू बेसिक थिंग्स, दैट वॉज फूड एंड वाटर, ठीक है। स्टोर इनफ बैटरीज। अब देखो बच्चों, आजकल मोबाइल का ज़माना है, कनेक्टिविटी का ज़माना है, आजकल क्या चल रहा है, गवर्नमेंट अलर्ट दे रही है, तो नाउ इन डैट केस आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज रखना होगा, और इसके लिए आपको बैटरीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। मोबाइल फ़ोन केवल आपके पास नहीं होगा, आपकी फैमिली में लगभग सभी के पास होगा, तो सभी की बैटरीज़ को हमें चार्ज रखना है। इसके लिए आपके पास इनफ स्टोरेज ऑफ बैटरीज़ होना चाहिए, इनफ बैटरीज़ आपके पास होना चाहिए। ओके, इमरजेंसी लाइट, क्योंकि देखो जब कभी भी कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि जब कभी भी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जब कभी भी बहुत तेज़ तूफान आता है, तो आप मेन पावर सप्लाई ऑफ कर दोगे। इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स अपनी जगह से उखड़ जाएंगे, जो वायर्स होंगे वो ज़मीन पे गिर जाएंगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ेंगे। नाउ इन दैट सिचुएशंस इफ़ द पीपल विल कम इन द टच ऑफ द वायर, देयर लाइफ विल नॉट गेट इन डेंजर, तो उनकी लाइफ डेंजर में नहीं आनी चाहिए। तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक पीपल्स को नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब कभी भी आप देखते हो कि बहुत तेज़ जब हवाएं चलती हैं तो ऑटोमेटिकली बिजली गुल हो जाती है। हमेशा देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ फॉल्ट की वजह से बिजली गुल होती है, इलेक्ट्रिसिटी कट की जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत तेज़ अगर हवाएं चलती हैं तो जानबूझ करके इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि किसी भी तरह का लाइफ लॉस ना हो। ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब आप अपने साथ में आरओ लेके तो जाओगे नहीं। अगर आपके घर में रिवर्स ऑस्मोसिस है, आरओ का पानी अगर आप पीते हो, तो अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है तो उस टाइम पर मनी भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि आसपास आपको कोई बेचने वाला कोई नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप पैसे से कुछ खरीदना चाहते हो, तो भी आपको इनफ अमाउंट में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आसपास की दुकानें सारी बंद होंगी, किसी भी तरह के सामान की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो आपको अपने साथ कुछ यूज़ होने वाली चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। दैट वाज ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी आपको अपने साथ में रखना होगा। एंड कैंडल्स, ओके, कैंडल्स मतलब भाई एकदम अंधेरा हो जाएगा चारों तरफ, हर तरफ बिजली कट है और बिजली के आने तो कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि हर तरफ के इलेक्ट्रिक पोल्स गिर चुके हैं। नियर अबाउट टू बी 1 वीक लगेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा आने में, ठीक है ना। एंड ऑल्सो बैटरी ऑपरेटेड रेडियो, बैटरी के थ्रू ऑपरेट होने वाला एक रेडियो, ताकि आपको मालूम चल सके कि गवर्नमेंट क्या अलर्ट दे रही है, ओके, टू रिसीव द लेटेस्ट न्यूज़। एंड ऑल्सो अ बैटरी ऑपरेटेड रेडियो टू रिसीव द लेटेस्ट न्यूज़। ओके, नाउ रिमेंबर देयर कुड बी अ डिस्ट्रप्शन इन इलेक्ट्रिकल एंड द वाटर सप्लाई एंड टेलीफोन कम्युनिकेशंस एज वेल। बिल्कुल सही बात है भाई, आपके टेलीफोन या फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, और नेटवर्क काम करता है बिकॉज ऑफ द टावर। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि टावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन 150 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर विंड आती है किसी भी एरियाज़ में, तो वहाँ के टावर्स को भले ही कोई लॉस हो या ना हो, लेकिन टावर्स के ऊपर जो आप एक एंटीना लगा के रखते हो, सभी कंपनियों ने अपने अपने एंटीनाज लगाए हुए हैं अपना नेटवर्क उस पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो वो जो एंटीनाज होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है।
तो फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स भी काम करना बंद कर देंगे। तो वो तो चलो एक एस्पेक्ट है। तो हो सकता है शायद कि आपके पास रेडियो वगैरह हो, तो रेडियो में, क्योंकि रेडियो जो होते हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, आज के ज़माने में कोई ख़ास उसका इम्पोर्टेंस तो नहीं है। लेकिन अब आंधी तूफान में जहाँ पर आपके पास कोई सहारा नहीं है, अब यही है कि भाई रेडियो से आप जितना अलर्ट कर सकते हो उतना अलर्ट कर दो, गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाने वाली न्यूज़ का आप सुन सको। ओके, नेक्स्ट नंबर सी, रिमूव डेड ट्रीज एंड द ब्रांचेस इन द विसिनिटी। ओके, डेड ट्रीज और ब्रांचेस को अपने आसपास से आप हटा दो, क्योंकि इन एनी कंडीशन, किसी भी तरह की सिचुएशंस में अगर आपको वहाँ से रन अवे करना पड़े, देन दे विल क्रिएट ए प्रॉब्लम टू यू। ओके, और बहुत तेज़ हवाएं अगर चलेंगी तो हो सकता है ये हवाओं के साथ ऊपर उठ जाएं और फिर अचानक से नीचे ज़मीन पे गिरें। हो सकता है कि शायद आपके ऊपर भी आ जाएं, तो वहाँ पर फिर लाइफ का लॉस हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए हमें इन्हें रिमूव कर देना चाहिए। सिक्योर लूज रूफिंग एंड क्लियर आउट ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन द ओपन। सिक्योर द लूज रूफिंग, आपके घर के रूफ अगर लूज है, मतलब मान लीजिए अगर आपका अपना लिंटर वाला घर नहीं है, मतलब रॉड डाल करके जो रेत गिट्टी और सीमेंट से जो आप लिंटर करते हो, वो वाला घर अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो रूफ है वो अच्छे से नट बोल्ट से टाइट होना चाहिए। अगर टाइट नहीं होगा तो फिर इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा हो जाएगा, पूरा का पूरा रूफ ही ऊपर से निकल जाएगा, और रूफ जाएगा तो उसके पीछे पीछे आपके घर का सारा सामान भी खत्म हो जाएगा। एंड क्लियर आउट ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन द ओपन। ओपन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसको अपने आप से बहुत दूर कर दो। ओके, फिशरमैन शुड नॉट वेंचर आउट टू द सी। फिशरमैन मतलब जो मछुआरे होते हैं उनको सी में नहीं जाना होता है। गवर्नमेंट भी वहाँ से अलर्ट जारी करती है कि उनको सी में नहीं जाना है। ओके बच्चों, डेट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये हम लोगों ने आज टॉपिक फिनिश किया हमारा कि सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग अ साइक्लोन, और यहाँ पर आपका साइक्लोन भी फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक टुमारो हम जो वीडियो बनाएंगे, टुमारो जो मेरा वीडियो होगा, इट विल कैरी द टर्नाडो। ओके, टर्नाडो के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।